هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج جس آیت جلیلہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، دوسرے پارے کی جس آیت کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن جو بھیجا گیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ مل کر کہیے سبحان اللہ۔ وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والا ہے، تفریق کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، سب میں فرق پیدا کرنے والی چیز قرآن مقدس ہے۔ پچھلے نبیوں کو بھی کتابیں ملی، کسی کو انجیل، کسی کو توریت، کسی کو زبور، یہ کتابیں تو ملی، آئیں اکٹھا، نبیوں کو اکٹھا دی گئی لیکن بعد میں بکھر گئی۔ آئیں اکٹھا آئیں، پوری کی پوری کتاب ملی لیکن بعد میں بکھر گئی۔ قرآن تھوڑا تھوڑا آیا اور ایسا اکٹھا ہے کہ نبی کے زمانے کے بعد سے آج اکٹھا ہے اور قیامت تک اکٹھا رہے گا۔ لوگ قرآن کو جتنا الگ الگ کرنا چاہیں، جلا کر ختم کرنا چاہیں، اس کو ختم کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں، لیکن قرآن نہ کل ختم تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ختم ہوگا۔ قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے، قرآن ہے اور رہے گا، ہے نا؟ اچھا، قرآن آنے کا مقصد، کوئی مشین لینے آپ جاتے ہیں، مان لیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں آپ موبائل لینے گئے تو آپ کو ڈبے میں موبائل ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے۔ ارے بولو یار، وہ کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ ریفریجریٹر لینے گئے آپ، جب آپ نے ڈبہ ہٹایا تو اندر بھی ایک کتاب موجود ہے۔ موٹر سائیکل لینے گئے، جب اس سے کاغذات لیے، بل بنایا تو وہاں بھی ایک کتاب ہے۔ بڑی چیزیں ہیں لیکن ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہے۔ کیوں بھائی ایسی کتاب؟ اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ وہ کتاب آپ کو یہ بتائے گی یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسے چلایا کیسے جائے گا، بگڑ جائے تو ٹھیک سمت پر لانا کیسے ہے۔ پہلی بات، موبائل کے ڈبہ کھولیں گے تو کتاب میں ہوگا کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اسے چلانا کیسے ہے، اور خراب ہو جائے تو ٹھیک سمت پہ لانا کیسے ہے نا؟ ہر چیز کا یہی حال ہے۔ موٹر سائیکل لیے، اس کتاب میں بھی یہی ہوگا، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اسے چلانا کیسے ہے، خراب ہو جائے تو ٹھیک سمت پہ لانا کیسے ہے۔ کمپنی کبھی یہ نہیں کرے گی کہ آپ کو مشین کوئی اور دے دے، ریفریجریٹر پکڑا دے اور کتاب آپ کو موبائل والی دے دے، مشین آپ کو موٹر سائیکل دے دے اور اون کی کتاب پکڑا دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہر چیز کے لیے کتاب ہے، مطلب یہ ہے کیا ہے، کیوں ہے، چلانا کیسے ہے، خراب ہو جائے تو ٹھیک سمت پہ لانا کیسے ہے۔ تو اللہ نے ایک انسان مشین کی شکل میں بنایا ہے، مشین کی شکل میں ایک انسان، 6 فٹ کا انسان اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اس انسان کو چلانا کیسے ہے، اس کے لیے قرآن دیا ہے، اس کے لیے قرآن ایک کتاب ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ریفریجریٹر لے کر آؤ، کتاب موبائل والی مل جائے، موبائل لے کر آؤ اور تمہیں موٹر سائیکل کی کتاب دے دی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا نا تو آپ کہیں گے کمپنی فلاپ ہے، کمپنی بیکار ہے، ماڈل کچھ اور ہے، چیز کچھ اور دیتی ہے، کتاب کچھ اور پکڑاتی ہے۔ بے عین ہی رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا
नाम क्यों है और कुरान इतने साथ क्यों है? हुदल लिन्नास, ये किताब उनके लिए हिदायत है जो इंसान है। किताब पढ़ो, हिदायत पा जाओ, किताब पढ़ो, नेक बन जाओ, किताब पढ़ो, अजमत अहले बैत समझ जाओ, किताब पढ़ो, मुस्तफा की अजमत समझ जाओ, हिदायत पाते जाओ। कुरान की सतरें पढ़ते जाओगे, हिदायत पाते जाओगे, हिदायत पाते जाओगे। जो जिस अंदाज में कुरान पढ़ता है, तिब्यान लिकुल्ले शैइन, इसमें हर चीज का बयान है। अब ये अलग बात है, हम कम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ थोड़ा बताएंगे, और ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ज्यादा बताएंगे, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ा, अपने अंदाज में जवाब देंगे, अपने इल्म के हिसाब से जवाब देंगे। कुरान तो ऐसी किताब है, बड़ी भी है, छोटी भी है, मुश्किल भी है और आसान भी है। आप कहेंगे छोटी कैसे है? छोटी इतनी है कि एक बच्चा इतना से किताब लेकर साथ में आ सकता है, और बड़ी ऐसे है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा जाता तो खशियते रब्बानी से वो पहाड़ रोना रोना हो जाता। छोटी इतनी है और बड़ी इतनी है। और क्या कि आसान भी है, और बोलो भाई, आसान भी है। और आसान ऐसी है कि 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा 2.5 साल में, 3 साल में कुरान मुकम्मल कर लेता है। और मुश्किल इतनी है, आसान तो इतनी है कि 10 साल का बच्चा 2.5 साल में हिफ्ज़ कर लेता है, और भी कम वक्त में हिफ्ज़ कर लेता है। लेकिन मुश्किल इतनी है कि बड़े बड़े सूरमा, इल्म के शहंशाह, आज तक उसकी तफसीरों में गोताजन है, वो गोताजन रहे लेकिन निकल ना पाए। कुरान आज भी समंदर बना हुआ है। हर आदमी के लिए हिदायत है, जो जिस मेयार का है कुरान, उसके लिए हिदायत है। हम नहीं पढ़ पाते कुरान, हम मुश्किल में हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे तो अब्बा ने अम्मा ने काम काज में लगाया। मेरी अपने भाइयों से गुजारिश है, मैं कभी जब कहता हूँ कि भैया जाओ बच्चों को बुलाओ, तो पता चला बाप ने किसी काम में लगा दिया। अफसोस, कमाना तो बच्चे को जिंदगी भर है, बड़े होकर क्या करेगा? कमाना ही कमाना है, उसका काम है। लेकिन आपने अभी से काम काज में लगा दिया, कुरान मुकम्मल ना किया, तो कल को बड़ा होकर क्या होगा? यही कहेगा। अगर बच्चे से कहा जाएगा कि बेटा घर में पढ़ा करो, किसी से पूछ लिया करो, तो यही जवाब देता है कि अम्मा कुरान नहीं पढ़े हैं, अब्बा कुरान नहीं पढ़े, हम तो पूछे तो किससे पूछे? अल्लाह भाई, ये हमारी कौम का हाल है। लेकिन कुर्बान जाओ, कुरान ऐसी किताब है, सबके लिए हिदायत है, सबके लिए हिदायत है। जो अपनी अक्ल के एतबार से इस्तेमाल करता है उसके लिए हिदायत है। कोई कुरान इसलिए सोचता है कि चलो ये बरकत के लिए है, घर में हाफिज साहब को बुला लें, कुरान पढ़ा लें तो बरकत हो जाएगी, अल्लाह उसे बरकत दे दिया करता है। किसी ने नया मकान बनाया, नई दुकान ली, सोचा चलो रहमत के लिए कुरान पढ़ा दिया जाए ताकि अल्लाह की रहमतें हमारे कारोबार में शामिल हो जाए, तो उसके लिए रहमत भी कुरान है। कोई मर गया तो आदमी ने सोचा चलो मदरसे के तलबा को बुला लिया जाए, ईसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ा दिया जाए, तो कुरान ईसाले सवाब भी है। जिस तरीके से आप कुरान को लेना चाहें, आपके लिए कुरान है, लेकिन असल मकसद कुरान का हुदल लिन्नास है। लोगों की हिदायत के लिए कुरान नाज़िल हुआ, अपने आप को चेंज करने के लिए, अच्छी राह में जाने के लिए कुरान इस्तेमाल आया है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला हमको कुरान की अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं बता रहा था, छोटा है उसे भी फायदा देता है, बड़ा है उसे भी फायदा आता है। एक शख्स था जो पढ़ा लिखा नहीं था, बेचारा बचपने से ही काम काज में लगा दिया गया होगा, तो बाद तक बेचारा काम ही काज करता रहा, कुछ काम नहीं था उसके पास, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता था। लेकिन हुआ क्या, जब मरा तो मरने के बाद देखा लोगों ने कि वो किसी शख्स ने देखा कि जन्नत में टहल रहा है। सुनकर कहो सुभान अल्लाह, जन्नत में टहल रहा है साहब। और उसकी बीवी के पास लोग पहुंचे, तुम्हारा आदमी तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, कुरान भी नहीं जानता था, तो ये मामला क्या हुआ कि उसे हमने जन्नत में देखा है? कोई अमल है जिसके वजह से, कौन सा ऐसा अमल था जिसके वजह से हमने उसे जन्नत में देखा है? बीवी रोने लगी, कहा सुनो वो बहुत जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं था, मजबूरी ने उसे पढ़ने न दिया, यहाँ तक कि वो कुरान भी नहीं जानता था, दिन भर फिरिया चलाता था, शाम को घर आता था, लेकिन एक काम करता था,
एक काम करता था, जब रात में लौट के आता था दिन भर थका हुआ तो कपड़े गंदे होते थे, नहाता धोता था और कुरान उतार कर रख देता था और उसके सामने बैठ जाता था और कुरान की सतरों पर, लाइनों पर अपनी उंगलियां चलाता था और कहता था, हर लाइन में उंगली रखता जाता था और कहता जाता था, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। यानी गोया कि जो कुछ लिखा है सब सच है। यही अमल है, हाँ यही अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत दे दी। ये कुरान हर किसी के लिए तो बयानन लिकुल्लि शैइन, इसमें हर चीज का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे नबियों की किताबें जो आई पूरी आई, बिखर गई, कुरान अलग अलग आया, आज तक है, कयामत तक रहेगा। और कुरान से बड़ा कोई मौजूदा नहीं है। मौलाए कायनात के पास एक शख्स जो मुसलमान नहीं था आया कि सुनिए, आपको अल्लाह के रसूल ने बाबुल इल्म बनाया है, इल्म का दरवाजा बनाया है। सरकार ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। तो आपको तो बहुत जानकारी होगी। आप लोग कहते हैं कुरान में हर चीज का बयान है, तो ये बताइए मेरी दाढ़ी का बयान कहाँ है और आपकी दाढ़ी का बयान कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप 2 घंटा लगा दें। पागल हो क्या, ऐसी बातें करते हो? लेकिन वो अली है, अली जिसके पास हर सवाल का जवाब हो उसे अली कहा जाता है। हाँ कहा, इसमें भी है कुरान में तुम्हारी दाढ़ी का ही बयान है, मेरी दाढ़ी का ही बयान है। अच्छा है तो बताइए, झूम कर कहिए। सुन, मौलाए कायनात ने कहा, सुन, सूरह आराफ 8वां पारा खोल, सूरह आराफ की तिलावत कर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल बलदुत तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। जो जमीन हमवार होती है वहां सब्जा हर जगह होया करता है, और जो जमीन बंजर होती है वहां सब्जा कहीं कहीं होता है। देख अपनी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी पूरी भरी हुई है, तेरी दाढ़ी थोड़े बाल यहाँ है, थोड़े बाल यहाँ है, थोड़े बाल यहाँ है। सुन, मेरी जमीन हमवार है, सब्जा हर जगह है, और तेरी जमीन बंजर है, सब्जा कहीं कहीं। तो बयानन लिकुल्लि शैइन, इस कुरान में हर चीज का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी ने कुरान का दर्स दिया, नबी के बाद सहाबा ने कुरान का दर्स दिया, अहले बैत ने कुरान का दर्स दिया, औलिया इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने, गौसे आदम ने, सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने, सरकार गरीबुन नवाज ने कुरान का दर्स दिया। वो गरीबुन नवाज जिन्होंने अपने हुस्ने इखलास से 90 लाखों को कलमा पढ़ा दिया, 90 लाख दायरे इस्लाम में आ गए। आज भी जिनके चौखट पर बड़े बड़े बादशाह सर झुकाया करते हैं, उन्हें गरीबुन नवाज कहा जाता है। लेकिन कुछ नाअहल, कुछ बेवकूफ, कुछ जाहिल जो हर जगह टार्च लेकर झूठे माबूदों को तलाशते हैं। ये सुन लो, फिरौन भी मिटा है, शद्दाद भी मिटा है, नमरूद भी मिटा है, तुम भी मिट जाओगे। देर नहीं लगेगी। तुमने हाथ गलत जगह पर डाला, हाथ गलत जगह पर डाला है। वो हिंद के राजा हैं, हमारे ख्वाजा हैं। अरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब कह दिया था तो सुनो, अगर तुम हमें उठने के लिए कह रहे हो और कह रहे हो कि ऊंट बैठा लो, यहाँ ऊंट बैठेंगे, तो सुनो अब तुम्हारे ऊंट बैठेंगे। और ऐसे बैठे कि उठाने पे उठे ना, तो सरकारे गरीबुन नवाज को अगर जलाल आ गया तो तुमने अगर हिम्मत कर ली तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी हिम्मतें वहीं धरी के धरी रह जाए, कि तुम अपने लाव लश्कर लेकर जाओ, गरीबुन नवाज की नजर हो जाए, तुम धरे के धरे रह जाओ। तुझसे टकराएगा जो, घूम कर कहिए सुभान अल्लाह। गरीबुन नवाज की शान अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। तुझसे टकराने का मतलब है तबाही ख्वाजा। कहता हूं सुभान अल्लाह। उससे टकराने का मतलब है तबाही ख्वाजा। ये तेरा मुल्क है, इस मुल्क का राजा तू है। ये तेरा मुल्क है, इस मुल्क का राजा तू है। ये तो 5 साल के राजा क्या है, भिखारी है, भिखारी। वोट बनकर भिखारी कहा जाता है। जो अल्लाह के फाइल से गद्दी में बैठता है उसे राजा का। अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। ये आंधियां आएंगी और चली जाएंगी। इस्लाम का परचम न कल झुका था, न आज झुका है, न कल झुकेगा। और फिर से कहो, इस्लाम था, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा।
اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچا مسلمان اور سچا نبی کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔